clear. Okay, don't unmute yourself. Yes, my voice is clear. Don't unmute नहीं yourself, right? मैम, आपको आपकी पता है ना, अपने बात जो से भी अपने आप क्लियर को नहीं आ बोल रही सकेगा, मैम, हम क्या क्लियर नहीं बोल आ रही। सकते हैं? Okay, you just check your connection, बच्चे. It's clear. And जो अपने आप को ऐसे अनम्यूट करेगा, he or she will not be the star of the class for me, right? So I'm going to take one name from third ping. Okay, Krishna. If Krishna has joined this class, then speak today's thought. Good evening, everyone. My name is Krishna Sharma. I am from third class. And today's thought is there is always something to become thankful for. Yes, simple. There is always something thankful for. Very good. क्या है आज का थॉट? कि हमेशा कुछ ना कुछ होता है थैंक यू करने के लिए, राइट? कि हमें ऑल द टाइम थैंकफुल फील करना चाहिए अपने गॉड को, अपनी फैमिली को, फॉर ईच एंड एवरीथिंग. सेम वही कि अगर हमने आज अपनी आईज भी ओपन की है ना, या अगर आप आज स्टडी भी कर रहे हो, तो ये की वजह से परमिशन दी है तो आप कर रहे हो, राइट? और बाकी सारी चीजें जो मम्मी पापा डेली हमारी कंप्लीट करते हैं, तो हमें हर चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए. कि कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज, कि अगर आप खेल भी रहे हो ना, या आप आ भी रहे हो, हर चीज आपको थैंक यू फील करना है. पूर्णिमा मैम. So now from third green class, I'm going to take one name. Mehtab Veer. If Mehtab Veer has joined the class, Mehtab Veer. Okay. If have you present? Okay. Let me come. Next, Manridham. Manridham. Yes, ma'am. Okay, I'm taking yes. Speak today's GK question. Ma'am, today's GK question is. Your voice. अपने आप लोगों को unmute करो पहले. Yes, speak. आपने रीड किया था जीके क्वेश्चन? Ma'am, no. That's bad ना. आपको करना चाहिए था. जीके क्वेश्चन इज फॉर योर नॉलेज, राइट? तभी मैंने आपको बोला है कि किसी की भी टर्न आ जाएगी, जो हम जीके क्वेश्चन एंड थॉट भेजते हैं ना, आप सारे रीड करोगे. ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन फ्रॉम यू. ओके, नेक्स्ट टाइम बी रेडी विद दिस. Ma'am, Okay. can I speak the GK question? Ma'am, may I speak the GK question? Ma'am, may I speak? Jasmine Kanta from third grade. Fast, let's not waste more time. Yes, I can see you, Jasmine. Unmute yourself. Okay, not getting any response. Soham, yes, Soham from third grade. Ma'am, Please may I speak to this GK question. You want to speak? Ma'am, may I speak? Yes. Ma'am, may Soham. I speak the GK question? Good evening to you all. Today I am Soham from Mahadevi Verma House. I am standing here to speak today's thought. Today's thought is which is the other name of Golden Temple, and the answer is Harimandir Sahib. I repeat my GK question. Which is the other name of Golden Temple? And the answer is Harimandir Sahib. Thank you. Have a nice day ahead. Yes, very good. Which is the other name of Golden Temple? And the answer is Harmandir Sahib. Very good. Okay, now let's start our today's class. Just wait for a minute.
Okay, so our today's topic is from the geometry chapter, right? अब तक तो आपने सारी वीडियो मैम देख आपकी आवाज स्लो है. Okay, so let me adjust my phone. Just wait. Okay, so our today's topic was measuring and drawing a line segment. Okay, so let me explain the difference between these two words, measuring and drawing. आपने अगर वीडियो अच्छे से कर ली है तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज यू गॉट इनफ टाइम. सुबह काम आता है ना आपको, तो शाम तक तो आप, आई नो वेरी इंटेलिजेंट, तो आप कर लेते हो. सो मेजरिंग मीन्स कि आपने किसी चीज को मेजर करना है. मेजर मीन्स कि आप ये जानना चाहते हो कि किसी चीज की लेंथ कितनी है, राइट? एंड नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स कि आपने ड्रॉ करना है जितना आपको लेंथ को बोला होगा. सिंपल है. लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं. लाइन सेगमेंट होती है जिसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते और उसको हमने ड्रॉ करना है. ओके, so now I am going to present my screen and in between no one will present their screen, right? Just be ready with your notebook जैसे हम डेली वर्क करते हैं. So our first topic is measuring a line segment, right? Measuring a line segment. आपको लाइन सेगमेंट दी हुई होगी, आपने उसको मेजर करना है. और अगर मैं यहाँ पे आपको कोई लाइन सेगमेंट देती तो आपको अपनी स्क्रीन पे वो छोटी दिखनी थी. अगर मैं अपनी तरफ से यस, देयर इज डिस्टर्बेंस. whose mic is unmute? Okay. So for this, what you will do, you will take your rubber or eraser which you are using, okay, and measure its length with the help of scale. आप सभी के पास रेजर होगी, किसी के पास बिग इरेजर होगी, किसी के पास स्मॉल इरेजर होगी. You just take your eraser and your scale and start measuring its length. Okay, now Shiveen, you are not doing, Shiveen. मैम मेरे पास गोल वाली इरेजर है. मैंने अभी ज्वाइन की. अगर आपके पास क्लियर कैसे करना है? ओके, अगर आपके पास गोल वाली इरेजर है वो तो फिर आप डिफिकल्ट होगा आपको मेजर करने के लिए. बेटर अगर आपके पास कोई स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल शेप की इरेजर है तो वो ले आओ भाग के. वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड दे आर गिविंग मी द आंसर. वेरी गुड. मैम ऐसी है. मैम आपकी आवाज ओके, अभी मैं बोली नहीं बच्चे, मैं बोली नहीं अभी. वेरी गुड, दोज हु हैव डन. सी, कई बच्चे लिख रहे हैं 3 सेंटीमीटर, कई 2.5. वेरी गुड. इट मीन्स कि आपको 0.5 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है जो मैंने अपनी वीडियो में छोटा सा एक्सप्लेन किया था. किसी की 5 सेंटीमीटर. वेरी गुड. एंड यस, ऑल आर डूइंग वेरी गुड. मैम मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, आप मुझे दोबारा बताओगे कैसे मेजर करना है? यस, अपना स्केल लो और आपको पता है ना, पहले आप अपने आप को अनम्यूट रखो और आप मुझे बताओ जब आपने मेजर करना है आप स्टार्ट कहाँ से करोगे स्केल से? मैम 1. नो 1, 0 से. यस, वेरी गुड. आइडिया ऑफ राजविंदर कौर. वेरी गुड. 0 से. ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार एक्सप्लेन किया था. आप बच्चे ये गलती कर देते हो, 0 से स्टार्ट करोगे. अब 0 से क्यों स्टार्ट करोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ना 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, तो आप उसमें क्या करोगे? आप 0 से स्टार्ट करोगे क्योंकि 0 से 1 1 होता है, फिर 1 से 2 अगेन 1, फिर 2 से 3. ठीक है, 3 तक पहुंचने के लिए हमें 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, फिर जाके होता है 3 सेंटीमीटर, राइट? स्केल को आपने हमेशा 0 सेंटीमीटर से ही स्टार्ट करना है. वेरी गुड. इफ यू हैव डन, बस सिंपल था, आपने इरेजर लेनी थी, आपने उसकी लेंथ को मेजर करना था,
right? Now next, take your pencil. What you have to do is, अपनी पेंसिल लो, जो भी अभी आप यूज कर रहे हो, ओके, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, एंड मेजर इट्स लेंथ. हो सकता है कईयों की न्यू पेंसिल हो, इतनी लंबी पेंसिल हो कि स्केल से मेजर भी ना कर पाओ, तो नो प्रॉब्लम, तो आप गेस के साथ लिख सकते हो. यस चेष्टा, वेरी गुड. 12 सेंटीमीटर मीन्स आपकी पेंसिल बिग है. 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट सेंटीमीटर, ओके. बिना सेंटीमीटर के आपका सम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. वेरी गुड. आईडी ऑफ सरबजीत कौर, आपने अभी, मैंने बोला ना, सेंटीमीटर नहीं लिखा आपने. विदाउट सेंटीमीटर इट्स नॉट कंप्लीट. Without centimeter, it's just a digit. But we want length, and length we are measuring in centimeters. Very good. So in this way, what we have learned कि हम किसी भी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. जैसे अभी आप रूम में बैठे होगे ना, तो आपके पास रूम में कोई कप होगा, जैसे कोई शो पीस वाला कोई कप होता है, या कोई भी एनी कप, या कोई भी चीज, छोटा सा पिल्लो होगा, आप किसी भी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हो. ये तो स्केल को हम यूज करते हैं छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से कम हो. क्योंकि आप देखो अपने स्केल पे लास्ट डिजिट क्या है, 15. इट मीन्स आप 15 सेंटीमीटर तक वाली लेंथ को ना मेजर कर सकते हो. आप ये देख सकते हो, आपने अगर अपनी फिंगर मेजर करनी हो, फर्स्ट फिंगर, आप देख सकते हो आपकी फर्स्ट फिंगर कितने सेंटीमीटर की है. ओके, आपका हैंड कितने सेंटीमीटर का है, आप देख सकते हो वेरी इजीली, राइट. और जो हमने बिग बिग मेजरमेंट्स करनी होती है ना, वो अगर आप में से किसी को पता हो तो वो आप इंची टेप के साथ करते होगे, जो हमारी मदर्स यूज करते हैं, अगर आपको पता हो, राइट. तो सिंपल है, आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल. आपको लेंथ पता लग जाएगी, राइट. नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट. ड्रॉ में अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक मेजरमेंट दूंगी, उतनी मेजरमेंट की आपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ AB is equal to 7 सेंटीमीटर. सिंपल है, लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको दी हुई है और आपने उतने सेंटीमीटर की लेंथ को ड्रॉ कर देना है. ओके, आईडी ऑफ हरवी कौर, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. टेल मी योर नेम. I'm Harvey Kaur. ओके, तो आपको यू हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट विद द लाइन सेगमेंट. You know what is line segment? Okay, tell me, how will you get to know that this is a line segment? सिंपल बोलती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई लाइन सेगमेंट है. आईडी ऑफ आकाशदीप, अपने आप को म्यूट करो. मैम, वो हम जब केसेस को मेजर करेंगे तब. नो, अगर आपके सामने एक लाइन हो, है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है. मैम, अगर वो स्ट्रेट है तो वो लाइन है, अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट है. Oh, it means your concept is not clear. अगर आपको clear नहीं है, then you can ask me. This is not the right answer. Okay, now mute yourself. Others are drawing the line segment. I can see. Very good. Next, we have Sargun in the class from third pink. Ma'am, line segment. Okay, those who have done can show me your notebooks in front of the camera. Just wait a second, just draw. Yes, very good. I can see your notebooks. Very good. Okay.
Now fast, write in the chat box who want to answer me the difference between line and line. Ma'am, your voice is not clear. Write in the chat box. The first one who will write in the chat box, I will take their name. Okay? Voice is clear, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ID of Rajneesh Kumar. You want to speak? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I Yes. have written the first. Excuse me, ma'am. Yes, speak, Harshita. Yes. मैम जब your voice is not clear, उसके साइड पर एरोस लगे होते हैं जिससे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और मैम जो लाइन सेगमेंट होती है उसके साइड पर एरोस नहीं लगे होते, उसके साइड पर पॉइंट्स लगे होते हैं, वो ये शो करते हैं कि हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। Very good. Very good. Excuse me, But ma'am. I have asked you to write in the chat box. But that's perfectly all right. No problem. Yes. आप जो excuse me बोल रहे हो, yes, बोलो. Excuse me, Yes. ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे, if you have any problem regarding the connection, then just write in the chat box. और आप अपना connection देखो. I think I'm perfectly audible and visible. Other students can listen me, okay? So just check your connection, right? So I hope you all must have drawn this line segment on your notebooks. It's very simple. Excuse me, ma'am. Yes. मैम मैंने आपसे ना एक बात पूछनी थी। पूछो। मैम जो आपने हमें बुक पर सम सॉल्व करने को दिए हैं मैम, उस पर ना वो ना पॉइंट वाले आ रहे हैं, तो हम वैसे करना है, हमें वैसे। हाँ जी, वैसे ही करना है जैसे बुक पे है। आप ये चैट बॉक्स में मुझसे बाद में पूछ लेना, लिख लेना। ओके, अभी मैं चलो बता देती हूँ जो मैंने पेज नंबर दिया है। जस्ट 2 सम्स है वहां पे, जैसे हैं आप उसको मेजर करके अपनी नोटबुक पे लिख लो, राइट? अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई देन यू कैन मैसेज मी। ओके, नेक्स्ट इज draw a line segment of length yz is equal to 3 centimeter. yz इसका क्या है? yz इसका क्या है? नेम। जैसे हम सबका भी अपना डिफरेंट नेम है ना, तो ये मैथ्स की लैंग्वेज है तो इसको डिफरेंट नेम चाहिए। तो इस लाइन सेगमेंट का नेम है yz। ओके सोहम, अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी लेटर। आई हैव रेड योर मैसेज। यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास, राइट? So draw this line segment. YZ is equals to 3 centimeter. Fast, simple है। आप कहाँ से start करोगे? 0 से। Okay, ID of Diya Sharma, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. Have you drawn? Okay, you are Krishna. Okay, have you drawn Krishna? Yes, ma'am. Very good. And when you was drawing, you start from where? आपने कहाँ से start किया स्केल से? 0. 0 से। अब 0 से लेके कहाँ तक फिनिश किया आपने? 3. 3। और आपने सेंटर में क्या लिखा? सेंटर में हमने लिखा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और कॉर्नर्स पे, पॉइंट्स पे क्या लिखा? पॉइंट्स पे लिखा हमने y। यस, वेरी गुड। एक कॉर्नर पे आपने लिखा y, एक कॉर्नर पे आपने लिखा z। यस, म्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड। So I hope you all must have done this. Okay? Yes, I can see your notebooks. Okay, next. Just answer this question in the chat box. Okay? So tell me that this is a line or line segment. No one will unmute, just write in the chat box and I will take first 3 names. Is this a line or line segment? Saransh, Sanvi and Harshita. ID of Rajneesh Kumar. Very good. All are giving me the right answers. Harjot, Shivakshi, Pulkit. Very good. Anmol Deep. Yes, it is a line segment. So I think now your concept is clear. Agamjot, you have written line. ध्यान से देखो, it's not a line. ID of Sumanlata, it's not a line. Very good.
So this is a line segment. Why this is a line segment? Because it has two end points, right? इसको हम extend नहीं ना कर सकते. आप देख सकते हो साइड पे क्या लगे हैं, point, that you cannot extend this line. तो अगर हम extend नहीं कर सकते तो ये बन जाएगी line segment, right? So today we have done the two topics. One is measuring the line segment and other is drawing a line segment. Okay? So now is the time for your surprise test. Are you ready all? Surprise test in the form of Google form, right? Yes, I can see your thumb. And just it's a small test, no need to panic. I'm going to paste one link in the chat box, right? Just wait. छोटा सा आपका एक गूगल फॉर्म का टेस्ट होगा, ओपन करना है आपने उस लिंक को. जस्ट वेट. मैम मुझे शो नहीं हुआ. अभी मैंने सेंड नहीं किया बच्चे. ओके, नाउ आई हैव पेस्टेड. ओके चेष्टा, आपको आप ना ईवीएस की क्लास के बाद यू विल कॉल मी. ओके, आपको जो कंफ्यूजन है आप मुझसे कॉल पे पूछोगे. आफ्टर 7 ईवीएस की क्लास के बाद यू विल कॉल मी. आई विल क्लियर योर डाउट. एंड सोहम, आपको भी कुछ पूछना था, यू कैन कॉल मी, राइट? सो आई हैव पेस्टेड अ लिंक इन द चैट बॉक्स. जस्ट ओपन दैट लिंक. किसी और स्क्रीन को या आप टच नहीं करोगे. जैसे आपका सीटी होना है, राइट? तो सीटी भी आपका इसी गूगल फॉर्म में होगा. एंड नो नीड टू पैनिक. आपने उस टाइम भी उस गूगल फॉर्म जो भी आपको आएगा सॉल्व करना है. आपका सीटी का चैप्टर है चैप्टर फ्रैक्शन, बट द सरप्राइज टेस्ट इज ऑफ चैप्टर टाइम, राइट? So open this link and answer all the questions just to check that your concepts are clear or not. सिर्फ अपने आप को असेस करने के लिए है ये गूगल फॉर्म. इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है या कौन सा नहीं है, कौन से पे आपको वर्क करने की जरूरत है, राइट? I hope you all must have get the link and you are doing. And don't off your videos. I want to see your faces. Okay, ID of. I am unable to see the name. आप कर नहीं रहे, आप ऊपर कहीं घूम रहे हो. From third green student, yes. जिनका हो जाए, just write in the chat box. Just write your marks. I know you all like Google Form very much. आपको ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? इसमें आपने जस्ट सोचना है एंड टिक करना है. दीक्षा, आपने लिखा है 1 out of 8. If it is 1, अगर मिस्टेक से लिखा है तो नो प्रॉब्लम. अगर 1 है then you need to do it again. माधवी, 8 out of 8. Very good. I want more responses. I'm waiting. Harsh Simran, 8 out of 8. Very good. No problem. अगर किसी का 1 मार्क कम है, 2 मार्क कम है, no problem. Yes, okay. Again, I am sending. Because एक बार हमने थॉट भी किया था ना that we learn from mistakes. अगर हम मिस्टेक्स करेंगे तभी हम लर्न करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज पे हमको वर्क करने की जरूरत है. एकम, हरवी, आईडी ऑफ कमलेश डोगरा. वेरी गुड. ओके हरवी, आपके 6 out of 8 है. नो, यस मैम लिंक फिर से सेंड करना. ओके, डूइंग. मैम वो मैंने लिखना कुछ और था, क्लिक किसी और पर हो गया इसलिए गलत हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम. तभी मुझे लगा कि गलत हो गया होगा. नो प्रॉब्लम. गौरिका, 6 out of 8. नो प्रॉब्लम. देयर आर 2 sums that you have done wrong. तो आप उस पे आप वर्क कर सकते हो. अगर कोई कंफ्यूजन हो गई तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट?
ओके, Excuse me, ma'am. आपके 7 out of 8 आए हैं, तो आपने सैड फेसेस नो प्रॉब्लम। तो क्या हो गया, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, आगे से आप ऐसे नहीं करोगे। यस यस स्पीक। Ma'am, what is the meaning of nap? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Nap. मैथ्स? Yes, ma'am. Ma'am, nap. यस यस। ओके, सो दैट्स ऑल, इतने ही रिस्पॉन्सेज हैं। आई वांट मोर। ओके बलजोत 7, पुलकित 8। सो जो बाकी कर रहे हैं नो प्रॉब्लम। ओके, जो कर रहे हैं सो आप करो आराम से, नो प्रॉब्लम। ओके, so that was all from my side. Let's recapitulate the topic again. So what we have done? Yes, Excuse me, ma'am. yes, speak. मैम 6th क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है, बताना। अभी मेरे पास ओपन ही है ना गूगल फॉर्म। 6 क्वेश्चन मुझे पता नहीं है कौन सा है, तो आप मुझे अलग से मैसेज करके पूछ सकते हो, राइट? ओके, सो हमने वी हैव डन द 2 lectures of chapter geometry. तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया? पॉइंट, then line segment. And today we have done measuring a line segment and drawing a line segment. In 5 topics में से किसी को भी कोई doubt हो, then you can ask me, right? Ma'am, can you tell me by line segment and line? Yes, you want to learn the difference between line and line segment? You are asking this? Ma'am, yes. Okay, so the difference between line and line segment is simple है। लाइन इज उसके आसपास क्या होते हैं? एरोज लगे होते हैं। ओके, आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपने इस लाइन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। जरूरी नहीं है कि करना है, बट Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूर्णिमा मैम म्यूट कर दिया। ओके ओके ओके, आई हैव अनम्यूटेड माई सेल्फ। तो सिंपल है, लाइन जहां पे साइड पे एरोज लगे हो, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, और जिसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। एंड लाइन सेगमेंट इज जहां पे साइड पे पॉइंट्स होते हैं, जिसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, राइट? यस, स्पीक। मैम, मैंने आपसे पूछना था कि ना वो जो काम करना था। ओके, आइडिया फर्विकॉल, आप अच्छे से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप मुझसे बाद में पूछोगे क्लास के बाद। Yes, ma'am. Can I take the class now? Is it over now, ma'am? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Now that's all from my side. Now be ready for your next Excuse class. me, ma'am. Those who Purnima, have ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Of the child. Beta, ma'am has said, please write in the any query. Listen first. First, mute your microphones. Good evening to all of you. Mute your microphones. All of you, please mute your microphones. Be good children. Mute your microphones. Very good. Child with Ravi Sandhu, कौन सा डांस कर रहे हो? Yes, mute your microphones. मैम, आपके मैम ने बोला है, पूर्णिमा मैम ने, बेटा एनी क्वेरी आप उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है? नाउ अब आपका कल है सीटी ऑफ ईवीएस, पता है ना आपको? सिर हिला के मेरे को जवाब दो, पता है? टुमारो यू हैव सीटी ऑफ ईवीएस ना? सो मॉर्निंग 8 to 8:30 रेड एंड ब्लू सेक्शन, एंड इवनिंग 5 to 5:30 ग्रीन एंड पिंक सेक्शंस, ठीक है? सो आपने रेडी रहना है। लिंक विल बी शेयर्ड एट 8 AM sharp in the morning and 5 PM sharp in the evening, ठीक है? आई विल सेंड द मैसेज ऑल्सो। सो आज मैंने आपको चैप्टर 9 आपका सीटी का सिलेबस है बेटे, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको आज एक्टिविटी करवानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर द स्क्रीन। बाय द टाइम यू गो एंड ब्रिंग योर ईवीएस बुक्स एंड नोटबुक्स, ठीक है? यू गो एंड ब्रिंग नोटबुक। बेटा, yes,
यस बेटा वंशिका, यस बेटा वंशिका। गूगल फॉर्म में बेटे हरवीर कौर, कोई किसी को म्यूट नहीं करेगा। अभी जो स्क्रीन को टच करेगा फिर उसको हम रिमूव कर देंगे क्लास में से। बेटा कोई ऐसे नहीं करेगा, आपका नेम विजिबल हो जाता है जब आप म्यूट अनम्यूट करते हैं। यस वंशिका, यू वर सेइंग समथिंग बच्चे। मैम गूगल फॉर्म में मैप आएगा? गूगल फॉर्म में मैप आएगा? नो बेटा, आई हैव नॉट गिवन यू द सिलेबस, आई हैव नॉट गिवन यू मैप्स इन सीईटी। ठीक है, ओनली मैप नहीं आएंगे जो मैं दो फ्लैट है। अभी चैप्टर 9 में नहीं आएगा बेटा। माइक्रोफोन गूगल फॉर्म में लगानी होती है। नो मैप्स, म्यूट योर माइक्रोफोन। बच्चे यू डोंट लिसन बेटा, म्यूट योर माइक्रोफोन्स। चाइल्ड विद राज शंघानी, सिट प्रॉपर्ली, म्यूट योर माइक्रोफोन्स। एक्सक्यूज मी मैम, आपको सिर्फ चैप्टर 9 रीचिंग प्लेसेस आएंगे और उसी की एक्टिविटी में आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ। ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 9 A64। एक्सक्यूज मी मैम। Monica ma'am, unmute yourself. And dear students, you all are requested kindly write your queries in the chat box. No one will unmute. Excuse me ma'am करके पूछेंगे तो किसी का आंसर नहीं दे पाएंगे मैम, और किसी का क्वेश्चन मैम को समझ ही नहीं आएगा बेटे अगर आप सब पूछेंगे। प्लीज chat box. Let's get ready with your books beta. Page 64, page number A64. Open your books by the time I am sharing the screen. Page number A64. मैंने स्क्रीन भी हट कर दी। बेटा म्यूट योर माइक्रोफोन्स, राइट इन चैट बॉक्स। मेरे पास चैट बॉक्स खुला है, ठीक है। म्यूट योर माइक्रोफोन्स, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक्रोफोन्स बेटा। I will give all the answers बेटे, म्यूट योर माइक्रोफोन्स। And you will sit properly, all of you. ओपन चैप्टर नंबर 9। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आएगी तभी आप सिर्फ अपना बुक खोल के देख लोगे, अदरवाइज हमने चैप्टर बहुत बार रिवाइज कर लिया है। यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स इजीली। इनेबल योर चैट बॉक्स बाय द टाइम मैम इज शोइंग द स्क्रीन। इनेबल योर चैट बॉक्स। Yes, this is revision of CT, chapter 9, reaching places. First, look at the first picture. Look at the first picture. सबने फास्ट आंसर देने हैं, क्वेश्चन विल कम वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज अ मैप? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज अ मैप? एक मैप क्या होता है? मैप को कैसे डिफाइन करोगे आप? यस, व्हाट इज अ मैप? पेज नंबर A64, लेसन 9 ऑफ योर बुक। व्हाट इज अ मैप? नो बेटा, मैंने ये नहीं पूछा है पिक्चर कौन सी है। सरबजीत परमार, चाइल्ड विद आईडी, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैप। व्हाट इज अ मैप? पेज नंबर रश्मित कौर बेटा A64। A64 पेज पे आपका चैप्टर है, इसका मतलब आपने अभी सीटी है, आपने रिवाइज नहीं किया चैप्टर। गुड, शाबाश कार्तिक। दिया शर्मा, वेरी गुड चाइल्ड विद आईडी। दिया शर्मा, हरीश कौड़ा, शाबाश। सिमरजीत कौर, गुड बेटा। सोमिका, वेरी गुड बच्चे। व्हाट इज अ मैप? आंसर इज, आई गिव यू द आंसर। A map is the representation of a place or a part of a place on the flat surface.
किसी भी प्लेस को या किसी प्लेस के किसी पार्ट को एक पेपर के ऊपर फ्लैट सरफेस के ऊपर शो करना, उसको हम मैप बोलते हैं। आपने मैप्स फिल किए हैं बेटे, आपने देखा है कि एक मैप है जिसको पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया है। अब पेपर जो है वो फ्लैट सरफेस है, राइट? सो मैप is the representation of a place or a part of it on a flat surface. Next question, how many types of maps are there? कितनी तरह के मैप्स होते हैं? How many types of maps are there? इंडिया के हमने how many types of maps of India are there in your book? हमने आपकी बुक में इंडिया के कितने टाइप ऑफ मैप्स किए हैं? शाबाश, राइट आंसर। बहुत इजी आंसर बेटा, वन वर्ड आंसर है और सबने पार्टिसिपेट करना है। बहुत अच्छा लिख रहे हो, गुड, शाबाश। चैट बॉक्स इज मूविंग वेरी फास्ट, गुड। सानवी सोनी ने तीनों के नाम भी लिख दिए, वेरी गुड चाइल्ड विद आईडी सानवी सोनी, गुड। आपने सिर्फ नंबर लिखना है, लेकिन उसने तीनों लिख दिए, आंसर से लिख दिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। इंडिया के हमने 3 टाइप्स ऑफ मैप्स किए हैं। 3 टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। मैं फिर रिपीट करती हूँ, political maps, physical maps and thematic maps. Political maps वो maps होते हैं which shows the states and the national boundaries of a country, right? और second है आपका physical map. Physical map show करते हैं physical features, जैसे rivers है, mountains है, forest है, lakes हैं, हिल्स हैं, ये सब फिजिकल मैप शो करेंगे। और थर्ड है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप शो करता है द रेनफॉल ऑफ एनी प्लेस, और द वेजिटेशन है, वहां पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेशन ऑफ ए प्लेस, नेशनल पार्क्स है या अदर ऐसे फेमस प्लेसेस हैं, उनको शो करते हैं थीमेटिक मैप्स। सो 3 टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। शाबाश, बहुत बच्चों ने आंसर लिखा है चैट बॉक्स में। यू हैव रिटन 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, वेरी गुड, आई क्लैप फॉर यू ऑल ऑफ यू। अब सेकंड जो नीचे वाला मैप है वो किस चीज का मैप है? सेकंड मैप जो नीचे वाला है वो किस चीज का मैप है? गुड, हरीश कौड़ा, चाइल्ड विद आईडी हरीश कौड़ा, वेरी गुड। चाइल्ड विद आईडी सुनील दत्त, नीचे वाला मैप सेकंड मैप। हाँ बेटा, वेरी गुड, राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो, ताकि आपको स्पेलिंग्स आए। म्यूट योर माइक्रोफोन्स ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट, म्यूट योर माइक्रोफोन्स, यू आर वेरी गुड चिल्ड्रन। हाँ शाबाश। सेकंड जो नीचे मैप है वो कौन सा मैप है? यस, आंसर इज राइट, दिस इज वर्ल्ड मैप। सेकंड मैप जो है वो वर्ल्ड मैप है। नाउ वेरी इजी क्वेश्चंस, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? इस वर्ल्ड मैप में आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशन सब लिखे हुए हैं। आप यहां से काउंट करके मेरे को बताओ कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? पूरी अर्थ को हमने बेटा वाटर बॉडीज में और लैंड एरियाज में डिवाइड किया गया है, और जितने लैंड एरियाज हैं इनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। द लैंड एरियाज इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। धरती में जितने लैंड एरियाज हैं वो कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। यस, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? यस बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर है। नाउ चाइल्ड विद आईडी धीरज पुरी, unmute yourself. Child with ID धीरज पुरी, बेटा unmute yourself. I think this is Vanshika Puri. Yes. वंशिका, मैप में से देख के मेरे को कॉन्टिनेंट्स के नेम बोलो। नेम द कॉन्टिनेंट्स क्विक, शाबाश। Continents. Can you speak? हाँ, yes, Yes. बेटे कॉन्टिनेंट्स। North America. Start South reading. America. North America, South America, Africa, Europe, Asia, Antarctica. शाबाश। ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया आपने। हाँ हाँ, शाबाश, वेरी गुड, आई क्लैप फॉर यू वंशिका, वेरी गुड। नाउ म्यूट योरसेल्फ बेटा। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। Australia is the smallest continent and Asia is the biggest continent. Now next question, how many oceans are there in the world map? Write in chat box, quick. We will revise the whole chapter, shabash. How many oceans are there in the world map? Yes, write in chat box, बिल्कुल ठीक आंसर। इसका मतलब आपने चैप्टर रीड किया है, वेरी गुड चिल्ड्रन।
Shabash, very good. Yes, good. Now child with ID. Child with ID, Kamlesh Dogra, unmute yourself. Child with ID, Kamlesh Dogra, unmute yourself, beta. Good evening, ma'am. शाबाश. गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू यू. अब इस मैप में सब बच्चों ने लिखा है देयर आर 5 ओशंस. आंसर बिल्कुल ठीक है, 5 ओशंस हैं. पूरी वाटर बॉडीज को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 ओशंस में डिवाइड किया है. नाउ स्पीक द नेम ऑफ दीज 5 ओशंस फ्रॉम द मैप. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Yes. Southern Ocean, and Indian Ocean. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा. नाउ म्यूट योरसेल्फ. सो 5 ओशंस हैं. टॉप से स्टार्ट करेंगे. आर्कटिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन. 5 oceans are there. Now, next slide is there. Right? See these pictures carefully. अब फटाफट आपने क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे को देने हैं. ठीक है? फर्स्ट पिक्चर लिखा हुआ है, दिस इज एन एटलस. नाउ डिफाइन एन एटलस. व्हाट इज एन एटलस? एटलस क्या होती है? इट इज नॉट ओनली अ बुक. व्हाट डज दिस बुक कंटेन? अकेला बुक आंसर नहीं है. हाँ, ये बुक है, लेकिन इस बुक पे क्या होता है? व्हाट डज दिस बुक कंटेन? गुड, वेरी गुड. You are ready with your work. Shabash. And book of map. हाँ, good बेटा. But don't unmute yourself. ठीक है? You can write in chat box. आपका नाम मेरे पास आ रहा है. शाबाश. Define an atlas. Answer है atlas is a book of maps. Atlas एक बुक होती है जिसमें अलग अलग मैप्स होते हैं. Next, second picture क्या है? What is this? Write the name of second picture. Write the name of second picture. Very good. अब बहुत बच्चे बहुत फास्ट लिख रहे हैं. शाबाश, वेरी गुड. बेटा कंपस के जो स्पेलिंग ठीक करो थोड़े से. कंपस के स्पेलिंग ठीक करो. सेकंड पिक्चर है बेटा कंपस. स्पेलिंग है COMPASS. COMPASS, कंपस. राइट? नेक्स्ट, What is its function? कंपस का फंक्शन क्या है? मैं मीटिंग कर सकती हूँ? हाँ बच्चे, मैं मीटिंग कर सकती हूँ? मीटिंग क्या करनी है आपने? यू वांट टू लीव द मीटिंग? यस मैम. व्हाई बेटा, व्हाई? क्यों छोड़नी है आपको मीटिंग? नो, प्लीज गिव मी आंसर्स. व्हाट इज योर नेम? What is your name, beta? We are revising tomorrow CT. Now write the function of the compass. Compass का function लिखो. शाबाश, very good. Compass is used for finding the directions. Direction find out करने के लिए compass use की जाती है. Now one more question is there. In which direction does its needle point? In which direction does it needle point? Compass की needle आपको दिखाई दे रही है. ये किस direction में हमेशा रुकती है? मैम नॉर्थ. Good, shabash. Write spelling in the chat box. If one student will unmute the microphone, others will also do. So don't unmute your microphones. Side by side, I will ask some questions from your side also. ठीक है, मैं आपको unmute करने के लिए बोलूंगी. Good. The needle of the compass always points in the north direction. अब देखो बेटा, अगर हमें एक डायरेक्शन पता है तो हम बाकी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारी बैक साइड पे हो जाती है डायरेक्शन साउथ. नीडल देखो, आपको दिखाई देगा कंपास में. अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस करें तो पीछे हमारे क्या आएगी? साउथ. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को हमारे आएगा वेस्ट. आप नीडल को देखो और अपने हाथ खोल के देखो. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे आएगा वेस्ट और राइट हैंड साइड हमारे आएगा ईस्ट. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछने हैं. वन डायरेक्शन की हेल्प से वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस आल्सो. नाउ लुक एट दिस डायरेक्शन चार्ट. दिस इज द डायरेक्शन चार्ट. ठीक है, फर्स्ट
Name the missing direction starting from your right hand side. मिसिंग डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट हैंड साइड. अब देखो आपने सबसे पहले कौन सी लिखनी है. अब आप देखोगे कि राइट हैंड साइड मैम कौन सा कह रहे हैं. तो देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करो. नॉर्थ ईस्ट के सबसे पहली डायरेक्शन कौन सी है, उस डायरेक्शन से स्टार्ट करो जो वेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है. वेस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन का नाम नहीं लिखा हुआ, वो कौन सी है? राइट, ईस्ट. बिल्कुल ठीक है, ईस्ट. अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसका नाम लिखो. द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसका नाम, सोमिका मक्कड़, वेरी गुड बेटा. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगी नॉर्थ वेस्ट. वेरी गुड बेटा. नाउ डायरेक्शन ऑपोजिट टू नॉर्थ मिसिंग है, लिखो चैट बॉक्स में. डायरेक्शन ऑपोजिट टू नॉर्थ लिखो आंसर. गुड, शाबाश. प्रीत कंग आप नाम लिख रहे हो अपना, क्यों, क्या हो गया? चाइल्ड विद आईडी प्रीत कंग, नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन लिखो. नाउ द चाइल्ड विद आईडी प्रिया गर्ग, अनम्यूट योरसेल्फ. चाइल्ड विद आईडी प्रिया गर्ग, अनम्यूट योरसेल्फ. शाबाश. चाइल्ड विद आईडी प्रिया गर्ग, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. No. Child with ID Pulkit Bansal, unmute yourself. Child with ID Pulkit Bansal. Yes, beta. Now, tell me the direction between south and east. Direction between south and east. उसका नाम क्या आएगा? पुलकित आपने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया. गिव मी आंसर. ओके, चाइल्ड विद राज शंगलानी, आईडी राज शंगलानी. गिव मी आंसर. चलो मैम साउथ ईस्ट. बिल्कुल ठीक है पुलकित, बिल्कुल ठीक है, साउथ ईस्ट. वेरी गुड. ठीक है, म्यूट योरसेल्फ नाउ बेटा. अब देखो बेटा हमने डायरेक्शंस की है ना, ये टोटल डायरेक्शंस कितनी काउंट कर लो इनको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ. ठीक है, काउंट योरसेल्फ द डायरेक्शंस. Now move to the next question. How many cardinal directions are there? Main directions कितनी हैं? Good, शाबाश. Good, शाबाश. Good. 4 main directions हैं. East, West, North and South. Next, how many sub directions are there? कितनी सब डायरेक्शंस हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर मेरे पास आ रहा है. गुड, शाबाश. Send me answer, all of you. Yes, four sub directions are there. 4 cardinal directions and 4 sub directions. So total हमारे पास बन गई 4 directions. ठीक है, 4 cardinal and 4 sub directions. Now last question of this slide. If we stand facing towards the rising sun, then which direction is towards our left hand side? अगर हम rising sun की तरफ फेस करके खड़े हो तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन सी डायरेक्शन आती है? अब देखो आप ना गेस करके लिख रहे हो, कुछ का सही आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है. सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट में. सन राइजेस इन द ईस्ट. अब देखो आप सामने, हाँ अब सामने पिक्चर डायरेक्शन चार्ट देखो. डायरेक्शन चार्ट में ईस्ट की तरफ देखो. ठीक है, आप ईस्ट की तरफ देखो. इजी वे में मैं आपको बताती हूँ. आपने ईस्ट की तरफ देखा डायरेक्शन चार्ट में. अब देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड जिस तरफ जा रहा है वो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? अपने आप को ऐसे करके टर्न करो और देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन आ रही है आपके? सी. हाँ, अब आंसर ठीक आना शुरू हुआ ना, सामने आपके पिक्चर है. गुड, ऐसे गेस नहीं करना, बिल्कुल ठीक आ रहा है. हाँ जी बेटा. मैम मैंने आपसे पूछना था कि कल जब हमारा टेस्ट है तो मैम हमें टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, सो राइट इन चैट बॉक्स. ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शंस आपको एंड ऑफ द गूगल मीट के बाद फिर दे देती हूँ एक बार. नो इश्यूज. ठीक है, आप चैट बॉक्स में फिर भी लिख दो, मैं आपको फिर आंसर दे देती हूँ. मेरे को मोनिका मैम अनम्यूट योरसेल्फ. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम ना आपने अनम्यूट किया है. मोनिका मैम अनम्यूट योरसेल्फ.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज Monica, मैम कोई आपको म्यूट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना, नो बेटे ऐसे नहीं करना, ठीक है। वी विल फिनिश फास्ट। गूगल फॉर्म कब आएगा? म्यूट योर माइक्रोफोन्स बेटा, जब आप माइक्रोफोन को अनम्यूट करते हो ना तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। म्यूट योर माइक्रोफोन्स बेटे। अब देखो, दिस इज द, लुक एट दिस बोर्ड, ठीक है। यू कैन सी टू पिक्चर्स हियर, यू कैन सी टू पिक्चर्स हियर। म्यूट योर माइक्रोफोन्स, गुड चिल्ड्रन, म्यूट योर माइक्रोफोन्स, शाबाश, ठीक है। टू पिक्चर्स हैं। नाउ आर दिस पिक्चर्स अ स्केच और ए प्लान? रीड करो क्वेश्चन को। ये पिक्चर स्केच है कि प्लान है? गुड, शाबाश। टाइब्रेज आदि, हरीश कौड़ा, अगमजोत, गुड, कार्तिक, दिया से बेटा, शाबाश। धीरजपुरी, अमनदीप, कमलेश डोगरा, गुड बेटा। हृदय गुड, दीप सिंह गुड। ये जो पिक्चर्स हैं स्केच शो करती हैं बेटा, ठीक है। म्यूट योर माइक्रोफोन्स। अंगद आई एक बच्चा दे। प्लीज म्यूट द चाइल्ड। These pictures, they show a sketch. Next है, is the sketch of anything drawn to a scale? Is the sketch of anything drawn to a scale? बेटा पहले तो मैं बताती हूँ, जो बच्चे अनम्यूट हैं वो अपने आप को म्यूट करो पहले, ठीक है। म्यूट ऑल ऑफ यू फर्स्ट, म्यूट योर माइक्रोफोन्स फर्स्ट। हाँ, ये जो पिक्चर्स हैं ये स्केच है, और स्केच यूज करने के लिए हम मेजरमेंट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यस, वी डोंट यूज द मेजरमेंट टू ड्रॉ स्केच। स्केच रफली ड्रॉ किया जाता है बिना किसी मेजरमेंट के। यहाँ स्केल का मीनिंग मेजरमेंट है, बिना मापे हम उसको ड्रॉ करते हैं। देन क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रॉन टू अ स्केल? तो स्केल से अगर हम स्केच करते हैं, यस बिल्कुल ठीक है। तो स्केल से हम क्या ड्रॉ करते हैं? गुड, हरीश, चाइल्ड विद आइडिया, हरीश कौड़ा, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। सारांश आप, हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो हम स्केल से ड्रॉ क्या करते हैं? प्लान। किसी चीज का आपको प्लान ड्रॉ करना है, किसी बिल्डिंग का, किसी मॉल का प्लान ड्रॉ करना है, देन इट इज ड्रॉन टू अ स्केल। तब उस टाइम मेजरमेंट यूज की जाती है। ये पिक्चर स्केच है, ठीक है। स्केच इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल and plan is drawn to a scale. Now beta, answer in one word. You will write the answer. Be active now. Quick fast round is there. अब मैंने देखना आप कितने क्विक हो, कितने फास्ट हो। चलो क्विक, रेडी, शो मी थम्स अप। शाबाश, गुड। The art of drawing a map. One word answer लिखो। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। मैम ये सबको बात बिल्कुल माइक म्यूट कर रहा है। Mute your microphones, please mute your microphones. I request, कोई बात नहीं, हो गया, फिर क्या हुआ, दोबारा हो जाएगा, ठीक है। Can you see my screen now? मैम यस। चलो ठीक है, आंसर लिखो। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट का आंसर लिखो, द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग अ मैप। यस, बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा। कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा इस टर्म में। द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग अ मैप। मैम गूगल फॉर्म कब आएगा?
बेटा आप माइक्रोफोन म्यूट नहीं करोगे और मैं आंसर नहीं दूंगी आपको। आर्ट ऑफ ड्राइंग अ मैप, आंसर लिखो। हाँ, आंसर इज राइट। जब तक मैम स्क्रीन शेयर करते थे ना, मेरे पास 60 के 60 बच्चों के आंसर आने चाहिए थे। यस, आंसर इज कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY, कार्टोग्राफी। आंसर इज कार्टोग्राफी, नॉट सेकंड। ये मैंने बोला आपको क्विक राउंड है ये आपका। अ पर्सन हु ड्रॉज अ मैप, कुछ बच्चे बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं, गुड, शाबाश। अ पर्सन हु ड्रॉज अ मैप, जो पर्सन मैप ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एक पर्सन जो ब्रिक्स के साथ काम करता है, मेसन। इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करता है, इलेक्ट्रीशियन। मैम मुझे ना प्रॉब्लम है कार्टोग्राफर और कार्टोग्राफ। बेटा रजनीश कुमार, आपने किसी को म्यूट नहीं करना है। चाइल्ड विद आईडी रजनीश कुमार। बेटे मैं क्लियर करती हूँ आपको। द आर्ट ऑफ ड्रॉइंग अ मैप इज कार्टोग्राफी, ठीक है। पर्सन को बोलते हैं पर्सन जो मैप ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। पर्सन हु ड्रॉज अ मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। दिस कलर रिप्रेजेंट्स वाटर बॉडीज ऑन ए मैप। एक मैप के ऊपर वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? गुड। वाटर बॉडीज को मैप के ऊपर शो करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? कार्टोग्राफर और कार्टोग्राफी में समझ नहीं आता। मैं बताती हूँ बेटा। जो आर्ट है, ठीक है, आर्ट, उसको ड्रॉ करने के आर्ट को कार्टोग्राफी बोलते हैं। जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी एक आर्ट है। फोटोग्राफी होता है ना, फोटोग्राफी एक आर्ट है। ऐसे ही कार्टोग्राफी भी एक आर्ट है, एक कला है। उस कला को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। मैप ड्रॉ करने की जो कला है वो है कार्टोग्राफी, उस आर्ट को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। जैसे पर्सन को, अगर जो पर्सन फोटोग्राफी जिसको अच्छे से आती है, वो फोटोग्राफी का आर्ट आता है, उसको हम उस आर्ट को बोलते हैं फोटोग्राफी, और पर्सन को बोलते हैं फोटोग्राफर। यहां भी सेम है, आर्ट को बोलेंगे कार्टोग्राफी और पर्सन को बोलेंगे कार्टोग्राफर। क्लियर है? अब देखो मैम यस। ओके बेटे। दिस कलर रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन ए मैप, आंसर इज ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर विच रिप्रेजेंट्स प्लेन्स ऑन ए मैप। कौन सा कलर एक मैप के ऊपर प्लेन्स को शो करता है? देखो तुझी कौन सा? बेटा म्यूट योर माइक्रोफोन्स, 2 मिनट में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है आपकी। चलो लिखो, विच रिप्रेजेंट्स द प्लेन। पूजा त्रेहन, म्यूट योरसेल्फ। चाइल्ड विद आईडी पूजा त्रेहन, म्यूट योरसेल्फ नाउ। यस, कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स को? Ma'am, I am unable to mute ID with Pooja Trehan. No problem, no issues, ma'am. Yes, green color represents the plains on a map. बिल्कुल ठीक है रेहान अली। रश्मि शर्मा बिल्कुल राइट आंसर। चाइल्ड विद आईडी मेड सिबलिंग्स बिल्कुल राइट आंसर। सानवी सोनी, आपको क्लास में बैठना नहीं आता। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड फॉर पिक्चर्स, साइंस, कलर्स यूज्ड ऑन ए मैप। एक मैप के ऊपर पिक्चर्स हम बनाते हैं, साइंस हम बनाते, पिक्चर्स के थ्रू हम कुछ शो करना है, साइन के थ्रू कोई चीज शो करनी है, कलर्स के थ्रू कोई चीज शो करनी है, तो उसके लिए हम ये टर्म कौन सी यूज करते हैं? वेरी गुड, शाबाश। मैंने क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया, आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए। शाबाश, गुड, शाबाश, गुड गुड, शाबाश। लिखो, सब लिखो, कोई बात नहीं, जैसा आता लिखो, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड, very good. Now, मैम thank you, beta, सिंबल। all of you. हाँ, symbols. Answer is symbols. The term used for the term used for these pictures or colors is called symbol. ठीक है?
मैम आप फिर से म्यूट हो गए। मैम आपकी आवाज नहीं। आई नो चाइल्ड विद आईडी सीमा बहन, चाइल्ड विद आईडी सीमा बहन से मैम को म्यूट कर दिया, नो इशू। ऐसे करना नहीं है पर आपने, ठीक है, अच्छे बच्चे बन के बैठना है। देखो सबका नाम मैं बोल रही हूँ, कितना अच्छा लगता है आपको। मैम यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ, इट इज ओवर नाउ। आई हैव टू डिस्कस सम रिगार्डिंग सीटी। ओके मैम। बेटा सीटी आपका है, आई टेल यू टुमारो सीटी ऑफ ईबीएस इज देयर, चैप्टर 9। मैम द मीटिंग इज ओवर या नॉट? मैम गूगल फॉर्म